Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to check break and continue statement. In the last lecture we have completed while loop statement and for loop statement. We have completed one of the program which was displaying the values for table, and now we are here to check with the break and continue statement and how to execute it. So what is from this statement itself what we can get is that break means to interrupt the program and continue it is to continue the program or to form the programs which is into the continuous manner. So now break statement is used to jump out of the loop, means to come out of the loop. It is used to make an early exit from the loop. If you want to make the loop exit, or else if you want to exit at particular level of program or particular instruction of the program, at that time you can come out of the loop by using break statement. When keyword break is encountered inside the loop, control automatically passes to the next statement after that loop. Means it will come out of the loop and then it will pass to the next one. Sometimes in looping, it may be necessary to skip statement block and take the control at the beginning for the next iteration. That can be done by using continue. Just remember to make the break for any of the instructions of program, we'll use break statement, and to continue from that point of contact, so where we will use continue statement, that will be only there. So break and continue can be utilized, can be used break to break the statement and continue to process for the next statement into the JavaScript. So for that here we are having a program which is for prime number. You all must be aware about prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं, कौन से prime numbers है, कैसे उसका execution करना है. For that this program we are going to execute by using our computer screen. So let's move to the computer screen and we'll execute this program. For understanding what is break and continue statement, here you are observing the break, and here how that break is getting executed over here, that we are going to check, and similarly how this prime number will get executed by using break and continue, that we are going to check. So let's move to our computer screen for the detailed explanation. So moving towards our computer screen and with the basic structure of HTML, now here we are going to start for title of the program, and this program is for prime numbers. So here I am going to add prime numbers. उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, तो जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप यूज कर लेंगे. स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया. नाउ हियर वी आर गोइंग टू ऐड फॉर function display. So what we are going to do over here, we will use the function which we are going to execute for. So with this function we are going to use display. Now for this, what we are going to implement over here, that here we will be having definition declarations, and that declarations we will be using like for var a comma answer के लिए ans. Here what we are going to use is, यहाँ पे ये हो जाएगा semicolon because we are declaring over here. Now a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, here we will use a function that is having a name as parseInt. Why we are using parseInt? Because it is going to give us the value in terms of numbers. So we are going to execute integer value for that. Now here we will be using form1 t1 dot value to accept the values for. Then here what we will be using is answer equals to, now I am assigning value as 1 because when we are going to multiplicate or anything या फिर divide करना है, mod करना है, तो value हम लोग 0 assign करके नहीं कर सकते, answer will not get. Okay, so यहाँ पे मैंने assign किया है value 1. for use करूंगी. for में हम लोगों को क्या करना है, I equals to, so here I equals to value हम लोग डाल रहे हैं 2 because prime number कहाँ से शुरू होता है, पहला prime number कौन सा है, 2. So okay, हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे. उसके बाद में सेमीकोलन, ये हो गया हमारा क्या, ये वैल्यू इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन, और उसके बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. सो दैट आई हैव असाइन्ड हियर. नाउ ये होने के बाद में हियर नीड टू बी सेमीकोलन, नॉट फॉर. ओके, यहाँ पे नाउ ये होने के बाद में हियर व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे मुझे कंडीशन सेट करना पड़ेगा. प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है, तो इफ
क्या क्या इफ में हम लोग ऐड करेंगे ए मॉड, अभी इसे मॉड बोलते हैं हम लोग, ओके, डिवाइड करना है ना, तो ए मॉड ऑफ आई, यहाँ पे आई का वैल्यू असाइन करेंगे इक्वल्स टू यहाँ पे कर देंगे 0। तो अगर उसका आंसर अगर 0 आता है तो क्या किया जाए, तो बाहर आया जाए, बिकॉज दैट विल बी देयर कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अगर हमने कोई वैल्यू को डिवाइड बाय 2 हो रहा है, उसका आंसर 0 आ रहा है, तो जब भी कोई रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, सो दैट विल बी प्राइम नंबर क्या, नो, दैट विल बी कंपोजिट नंबर। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो फिर हम लोगों को वो, अगर 0 यहाँ पे आंसर आ रहा है तो हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे, बिकॉज दैट विल नॉट बी देयर द प्राइम नंबर देन। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिख रहे हैं। देन ये होने के बाद में इफ देखो, फॉर, ये इफ खत्म हो गया, फॉर खत्म हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके बाद में हियर आई एम गोइंग टू ऐड, लेकिन इफ मीन्स ये क्या हो गया, अगर 0 है तो ब्रेक कर दो, बट अगर 0 नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा, जब आंसर इक्वल्स टू 1 आता है, जब उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, एट दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो एक मैसेज डालेंगे, अलर्ट डालेंगे, दैट नंबर कौन सा रहेगा, दैट नंबर इज प्राइम। जब रिमाइंडर बच रहा है कुछ तो दैट नंबर इज प्राइम। अगर 0 आता है तो ब्रेक कर दो। क्यों आप लोग ये कर रहे हो, क्यों फिर से एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग एल्स what we will do it here, again alert will specify, and that alert will be here, will specify that number is not prime, okay। ये हो गया यहाँ पे ना, ये होने के बाद में इधर में हो गया हमारा स्क्रिप्ट क्लोज। ये 1, ये 2, ये 3, ये एक्सेस, इसलिए रेड में आ रहा था, ओके। ये हो गया स्क्रिप्ट क्लोज, देन ये हो गया हेड क्लोज, ओके। अब हम लोग जाएंगे प्रोग्राम के बॉडी में, यानी पेज पे हमें क्या दिखाना है। तो सबसे पहले मैं पेज पे दिखाना चाहती हूँ हेडिंग लेवल नंबर 1 यूज करके अलाइन कर रही हूँ उसको सेंटर में, क्योंकि मुझे प्राइम नंबर जो भी आएगा या फिर जो भी हेडिंग डालना है वो बीच में चाहिए, तो वो मैं यूज कर रही हूँ सेंटर। ये होने के बाद में मुझे क्या चाहिए, तो प्रोग्राम टू check entered number is prime or not, ओके। फिर इसको हम लोग यहाँ पे इसको H1 को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे हेडिंग हमने स्पेसिफाई कर दिया प्रोग्राम का। उसके बाद में हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा फॉर्म, एंटर कर रही हूँ। तो फॉर्म में हमें क्या चाहिए, तो फॉर्म का नाम चाहिए, तो फॉर्म नेम इक्वल्स टू वैल्यू असाइन करेंगे उसकी फॉर्म 1, ओके। ये होने के बाद में यहाँ पे स्टाइल सेट करेंगे, क्या चाहिए, तो वो जो फॉर्म है वो हमें स्टाइल के साथ में सेंटर पे चाहिए, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट बोलेंगे, वो टेक्स्ट अलाइन करके हमें चाहिए सेंटर। नाउ हियर देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एंटर योर नंबर, ऑलवेज रिमेंबर वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। स्पेसिफाई कर दो यहाँ पे आपका इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में क्या ऐड करेंगे, टेक्स्ट, ओके। ये होने के बाद में नेम में आ जाएगा T1, उसके बाद में आ जाएगा ब्रेक, ओके। मैं एंटर करके लिख रही हूँ इसे। दूसरा मैं यूज कर रही हूँ इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी,
तो मुझे एक बटन चाहिए जिसके ऊपर में क्लिक करने के बाद में मुझे पता चले। इसके पहले भी हम लोगों ने चेक किया था कि हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग को सेट करते हैं। वैल्यू यूज करूंगी, उसके अंदर में मैसेज रहना चाहिए क्या, तो चेक द प्राइम नंबर। और उसके बाद में उसे मैं ऑन क्लिक यूज करने वाली हूँ। तो ऑन क्लिक इक्वल्स टू कॉल करना है फंक्शन को कॉल करेंगे डिस्प्ले के साथ। ओके, फिर जैसे कि हमारा कॉलिंग ऑफ फंक्शन हो जाता है, then what we will use is this will close and then we are going to use over यहाँ पे input type हो गया, form हो गया, okay, body close हो गया and HTML भी close हो गया। So चलो सेव करके चेक करते हैं कि हमारा क्या कुछ आउटपुट आना बाकी है या फिर हम लोग प्रॉपरली कर पा रहे हैं। सो ये पेज अपना क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज चेक करती हूँ। मैंने 15 ऐड किया, नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, चलो मैं दूसरा नंबर यहाँ पर ऐड करके देखती हूँ। चेक, नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, मैं यहाँ पे और एक नंबर ऐड करके देखती हूँ, नंबर इज प्राइम। ओके, सो दिस वे इट इज गिविंग यू द अलर्ट एंड फॉर दैट ओके पे क्लिक करेंगे तो यू कैन चेक द वैल्यू। दूसरे वैल्यूज के साथ में आप यूज कर सकते हो। चेक, नंबर इज नॉट प्राइम। सो दिस इज द प्रोग्राम वेयर वी हैव चेक द ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ मैं आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली समझा के बताती हूँ। अब देखिए कि दिस इज हमारा आउटपुट एंड दिस इज व्हाट आवर स्क्रीन इज। हमने किया क्या, ब्रेक को कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर मैं पहले ये बताती हूँ कि ये बॉडी टैग में जो हमने यूज किया वो पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लेवल यूज किया। हेडिंग लेवल यूज करके मैंने यहाँ पे ये हेडिंग को सेट किया, सेंटर में अलाइन किया। फिर फॉर्म यूज किया। फॉर्म में हम लोगों ने कॉल किया था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में लिया था एंटर द नंबर के लिए। उसके लिए हमने इनपुट टाइप यूज किया टेक्स्ट, जहाँ पे हम लोग नंबर को ऐड करने वाले हैं। दूसरा इनपुट टाइप से चेक किया कि यहाँ पे एक बटन सेट किया जाए, वो बटन का नाम दिया जाए चेक द प्राइम नंबर करके। उसके ऊपर में क्लिक करने के बाद में उसने क्या करना चाहिए, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना चाहिए। डिस्प्ले फंक्शन कहाँ गया, ऊपर। ओके, ये है हमारा फंक्शन डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन क्या बोलता है हमें कि वेरिएबल रहेगा ए और एक आंसर नाम का वेरिएबल रहेगा। उसमें हम लोग ए की वैल्यू जब असाइन करेंगे तो यहाँ पे पार्स इंट फंक्शन यूज करेंगे जो इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। और आंसर जो है वो 1 पे सेट कर दिया है। फॉर कंडीशन स्पेसिफाई किया, हम लोगों ने 2 से शुरुआत की बिकॉज प्राइम नंबर जो है हमारा उसके आगे का ही रहना चाहिए, उसके आगे के ही रहता है। सो कंडीशन अगर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है तो ब्रेक करो, बाहर निकल जाओ और बता दो कि नंबर इज नॉट प्राइम। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 1 आता है या फिर कुछ दूसरा नंबर आता है तो स्पेसिफाई करो कि दैट नंबर इज प्राइम। क्योंकि इस हिसाब से कंडीशंस को हमने एग्जीक्यूट किया है। सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, द लॉजिक ऑफ ब्रेक हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड दिस वे वी आर एग्जीक्यूटिंग एंड चेकिंग कि नंबर इज प्राइम और नॉट। सो दिस इज व्हाट द बेसिक प्रोग्राम। हम लोगों को फिर से चेक करने का है, तो मैं यहाँ पे बड़ा नंबर चेक करके देखते हैं, नंबर इज नॉट प्राइम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम। एंड यहाँ पे इवन यू कैन चेक कि ब्रेक कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, दिस लेक्चर ओनली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे दैट हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट फॉर डॉग। क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल दैट टाइम, thank you for watching. In case if you have any doubt, you can ask me. Thank you.